अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि मेरे घर में मेरे पास कौन सी चीज़ होनी चाहिए? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। वो क्यों? मामा हाथ से कपड़े धोती हैं, जी। उनके लिए लाजमी चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जबर मीडिया और मैं आपका मेज़बान मुमराज से। नाजरीन, बाबा साईं मिर्चो सरकार कलंदर का मज़ार पर जो उर्स मुबारक की जो तकरीबात थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तो एक ऐसी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो मुझे बड़ी एक हैरान कुन स्टोरी लगी है कि एक बाबा बुज़ुर्ग अपनी फ़ैमिली के साथ हर मेले पर जाते हैं और अपनी फ़ैमिली के साथ बच्चों के खिलौने बेचते हैं, जलेबी वगैरह बेचते हैं और जिधर जिधर मेला होता है अपनी फ़ैमिली के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं। और इन बाबा साहब का आज मैं इंटरव्यू तारफ़ आपके सामने पेश करूंगा और इनके क्या मसले मसाइल हैं ये भी डिस्कस करूंगा। तो आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं इनके क्या प्रॉब्लम है कि अपनी फैमिली के साथ कभी उधर ये क्या सिलसिला है और कब से ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अल्लाह का शुक्र है, करम है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? इलाका जी मेरा मंडी बावलदीन तो अगे सरगोद रोड ते गोजरा है जी, खाई गोजरा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ना जी मुनीर अहमद मेरे ना जी। ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ। जी जी। ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਤੋਂ ਜਬਰ ਇਸਲਾਮਪੁਰਾ ਜੱਬਰ ਹਿੱਤਾ ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। जी हाँ, ਕੋਈ मैं ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਣਾ? तकलीफ तो जी होंदी है, लेकिन ये जी दर गुजारा थोड़ा है ना जी। मैं इदा बंदा ना मैं रखा मजदूर दिहाड़ीदार, मैं अपने बच्चे नाल लैके काम कर लेना बच्चों की पेट परस्ती वास्ते। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ? इतने जी जलेबी या कोई बच्चों के खिलौने लभदे जी। ਸਹੀ ਹੈ। जी हाँ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਨੇ? 5 बच्चियां बच्चे जी, सारे ਸਕੂਲ बाल। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? जी हाँ, बाल छोटे हैं जी। ਅੱਛਾ, जी हाँ। ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਦੜਿਆਂ ਦਾ ਮੋੜਾ, ਸਮੋਟ ਕੋਲ। ਸਮੋਟ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਟ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੱਲਰ ਸੇਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੁਲਣਾ? गुजारा जी ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਔਖਿਆਂ ਔਖੀ ਜੀ ਕਰੀਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਆਪ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਣਕ ਕੱਟ ਲਈ, ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਂਝ ਲਾ ਲਈ, ਘਾਹ ਸ਼ਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ। ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਓ? ਰਹਿ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਅਗਰ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਘਰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ जंगल है कालियाँ, क्योंकि मेरी हेल्प कर रही है बीवी। बाल मेरे स्कूल चले जाते हैं, ਠੀਕ। बीवी मेरी अकेली नहीं रह सकती, तो बीवी के सारे नाल मैं भी काम करता रहना। मैं मरीज भी हाँ ना जी, बीमार हाँ। ਅੱਛਾ, मेरी वो बीवी हेल्प करती, बहुत काम करेंदी मेरे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? बस जी शुक्र अलहमदुलिल्लाह, क्योंकि जोर वाला काम जड़ा है ना जी मुश्किल है थोड़ा जिहा। इहदे नाल कतरा है, जोर नहीं नाल लग्या रवीदा, चलो कोई रोजी आ ही जाती है बालां दे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ जी हाँ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਉ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਇਹਦੀ ਸੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਭਰਾਉ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਵਾਪਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ 3000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ। ਸਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ। ਸਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਤਾਮਰ ਸ਼ਮਨ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜੁਲੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਣੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕੰਮ ਜੀ ਇਹੀ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਕਰਸਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਰੈਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜੁਲੇ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ, ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ।
सुनो ना जी दुकान दे ना जी दुकान बड़ियां महंगियां लगदियां जिथे सेल हुंदी है सही है साइड ते दुकान लईए ओदी सेल कोई नहीं जी बिल्कुल क्योंकि जलेबी ये बेचनी है ये जिथे रश हुंदा उत्थे वेच सकदी है सही है साइड तो इत्थे दुकान लभ जांदी है पर चक्की वाली साइड ते लेकिन उत्थे गाहकी भाई कोई नहीं ऐसे। मैं जलेबी लैके रिक्शे धर के ते एक जगह ते बाजार च बह के बना लेना सिर्फ तकलीफ है जो मेरा है जड़ा है ना सिलसिला रिक्शे का पैसा 50,000 दिप जावे फिर मैं थोड़ा जिहा दिमाग तो आज़ाद हो जाना क्योंकि मैंने तकलीफ सोचा तो भी ज़्यादा बनती है सही है दवाई मैं पिंडियों लै रहा रावलपिंडी तो बाबा जी साड़ी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ जी हाँ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹਣ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿਓ जी हाँ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ नंबर जी मेरा है 0320 910 391 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿਓ 0320 910 391 ठीक हो गया जी जी हाँ अस्सलाम वालेकुम नूर क्या नाम है आपका फातिमा थोड़ा सा ऊंचा बोलो नूर फातिमा नूर फातिमा अच्छा नूर फातिमा मुझे ये बताओ आपके लिए कौन सी चीज़ होनी चाहिए आप साइकिल पसंद करेंगे कौन सी चीज़ आप पसंद करते हैं का कार अच्छा आपको कार चाहिए और अस्सलाम वालेकुम आपका नाम क्या है समर बास समर बास आप कौन सी चीज़ पसंद करते हैं साइकिल साइकिल अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपका नाम क्या है अंबर बास कमर अब्बास और अंबर अम्बर अंबर अब्बास बास अच्छा कितनी क्लास में पढ़ते हैं तीसरी आप क्या चाहते हैं मेरे पास कौन सी चीज़ होनी चाहिए साइकिल साइकिल होनी चाहिए जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपका नाम क्या है रिमशा अब्दुल रिमशा बतूल मुझे ये बताओ आप कितनी क्लास में पढ़ती हैं 5 में और बड़े होकर क्या बनना चाहोगी टीचर टीचर माशाल्लाह अच्छा मुझे ये बताओ कि आप क्या चाहते हैं कि मेरे घर में कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करती हैं ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए साइकिल ही होनी चाहिए साइकिल जी अच्छा आप तीनों को साइकिल चाहिए और इस छोटे को कार चाहिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा मुझे आप अपना नाम बताओ रमीसा बतूल रमीसा बतूल कितनी क्लास में पढ़ती हो 6 में 6 में और आपके स्कूल का नाम क्या है गवर्नमेंट का हायर सेकेंडरी स्कूल स्मोट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्मोट और ये मुझे बताओ बड़े होकर क्या बनोगी टीचर इंशाल्लाह अच्छा आप क्या चाहती हैं कि मेरे घर में मेरे पास कौन सी चीज़ होनी चाहिए वॉशर मशीन वॉशिंग मशीन वो क्यों मामा हाथ से कपड़े धोती हैं जी उनके लिए लाजमी चाहिए जी चलें जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी जो फरमाइशें हैं ये मैं पूरी कर सकूँ तो नाजरीन आप दोस्तों की तावन से उम्मीद है कि ये बच्चों के मसाइल और इनके शौक़ पूरे ज़रूर होंगे जी नाजरीन आपने देखा बाबा साहब की बातें भी सुनी हैं और ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं पांच बच्चियाँ और जी। बच्चे हैं और जी। इनके अखराजात कपड़े का अखराजात और स्कूल की जो फीसें वगैरह बेशक सरकारी हैं फिर भी खर्चा होता है सफ़र आने जाने का आटा किराया जी बड़ा वगैरह। बहुत महंगा है 80 रुपये किलो आटा ले ते बड़ा उसके परेशान साथ है। जो रोटी का सिलसिला है आटा भी महंगा है और गैस सिलेंडर भी महंगा होता दवाई भी है लेनी बाबा खुद बड़ा- दवाई लेते हैं तो नाजरीन ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जितनी हो सके इनकी हेल्प की जाए इनका जो रक्शे का जो इन्होंने किस्तें देनी है वो किस्तें पूरी हो जाएं अगर कोई बंदा इनको रिहाइश देना चाहे इस्लामपुरा जबर में बाबा जी तुसी मैनेज कर लोगे अगर कोई बंदा इत्थे तुहानू रिहाइश देना चाहे तो सुनो ना जी रैश हो ਦਿੱਤੀ है ना जी नकालियां मैंने किसी ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ सही है ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾਉਣਾ अच्छा ਉੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਣ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬੇ ਤੇ ਆ ਫਟੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਘਰ ਜੀ ਤੇ ਆਂਡੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆ चलो दोस्तों से गुजारिश है कि जितनी अगर हेल्प हो सके मेरे रेफरेंस से इनका नंबर आपके पास आ गया है खुद आप रब्ता कर सकते हैं तो बाबा साहब की हेल्प करें और इनकी जो मदद करें
बेशक अल्लाह करीम बेहतरीन अजर देने वाला है।